everyone, welcome to this session. I am Prerna, your educator for UGC NET English. In today's section, we are going to study Enlightenment Age. So previously we talked about Restoration Age, and there we talked about how theatres came in and we saw themes such as the themes of sexual explicitness, okay, love affairs and the moral corruption of the aristocracy in that particular section. Then we see that how Enlightenment Age came, and in Enlightenment Age we saw the development of the prose, pamphlets, okay, scientific developments were taking place, and they focused more on the rational part, logical part. Writers were more logical. We see writers like Alexander Pope, Jonathan Swift, and Enlightenment Age is also known as the age of satire. Okay, is also known as the age of satire because we see a lot of satirical works. Alexander Pope has written the Dunciad, which was the adaptation of, okay, which was influenced by John Dryden's Macflecknoe. तो यहाँ पर अब जब हम एनलाइटनमेंट एज के बारे में बात करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे that it was an intellectual and cultural movement, okay, that emphasized reason, science, individualism, and we see progress. Yes, it challenged traditional authority, especially in politics, religion, philosophy, leading to revolutions in thought and governance across Europe and the America, right? So here we see all these references. Moving further, we are going to see the important characteristics, historical development during the Enlightenment period. Okay, we know कि इस टाइम पे हमारी पोम से ज़्यादा या फिर ड्रामा से ज़्यादा हमारे प्रोज, पैम्पलेट्स, मैगजीन्स ज़्यादा डेवलप हो रहे थे. हम देख रहे थे कि लोग कॉफी हाउसेस में मिलते थे जहाँ पर बैठ के वो साइंस के बारे में, रीजन के बारे में, और जो हमारी पैम्पलेट्स होते थे, न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे, तो वो सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कशन करते थे. ओके, सो वी ऑल्सो सी द इमर्जेंस इन कॉफी हाउसेस जहाँ पर लोग बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे. यस, मूविंग फर्दर वी सी, ओके, सो हियर वी ऑल्सो सी द डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. ठीक है, इनसे पहले हमने देखा चार्ल्स द सेकंड वाज रूलिंग, फिर एक्सकर्जन राइट्स में हमने देखा जेम्स द सेकंड वाज about to be succeeded but then he became infamous. और फिर हम देखते हैं कि जो विलियम थर्ड और मैरी सेकंड आए थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली the monarchy was the face and the whole. We see that the responsibility to make rules and regulation was on to the parliament. So enlightenment challenged divine right of kings कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा. ओके, the king's son is going to be becoming the किंग. तो ये वाला जो हमारा रूल था डिवाइन राइट की, गॉड ने चूज किया है किंग को, ये डिसमेंटल हुआ, इसको डिस्टॉर्ट किया, एंड इट लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. ओके, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैपेंड. अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे. फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही था कि मोनार्की पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, मोनार्की हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड parliamentary powers has to be given more importance there. So English Bill of Rights, which we see in 1689 published. Okay, now England won't only be a constitutional monarchy but a parliamentary democracy. Yes, French Revolution में भी हमने देखा कि फ्रांस में जो था डेमोक्रेसी डेवलप हुई थी, डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई थी, है ना. Here also we see कि जो monarch है would serve as the Britain public face icon and perform the official ceremonies. वो सारे official ceremonies में जाएंगे, जो भी international conferences होंगी. But then we see that the parliamentary powers, okay, जो powers है, it is going to be limited to the parliament. Okay, Act of Union आया जहाँ पर हम देखते हैं Scotland merged with England and Scotland plus England made the Great Britain here. Okay. Then moving forward we see कि कुछ हमारे जो important historical events है जैसे कि the licensing act. Okay, here what happened, it came up after which theatres were closed. Okay, दोबारा से थिएटर, एक तो पहले 1642 में क्लोज हुए थे, जब 1660 में दोबारा से आ गए थे,
फिर हम देखते हैं क्योंकि ये जो एज थी वो रीजन की, प्रोज की थी, सो 1737 में दोबारा से थिएटर्स वर बैंड, ओके, वर क्लोज्ड एंड पीपल टर्न टू नॉवेल्स, तो लोगों ने नॉवेल्स लिखना शुरू किया, ओके। आयरलैंड वाज इंक्लूडेड इन ग्रेट ब्रिटेन, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक्ट ऑफ यूनियन भी आया, लाइसेंसिंग एक्ट, एंड देन हियर वी सी दैट इन 1978 आयरलैंड वाज इंक्लूडेड इन ग्रेट ब्रिटेन, ओके। ऑल्सो वी सी कि हमारी जो ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है डेली यूट्यूब लाइव पर, जहाँ पर हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम बहुत सारे जो है MCQs भी सॉल्व करते हैं। तो डेली जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो 8:35 AM पे स्टार्ट हो जाती हैं, ओके, जहाँ पर जो है हम ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इनको और भी ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में अगर आप ये सेक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरी क्लासेस जो होती हैं यूट्यूब लाइव पे डेली, तो उनको लाइव सेशंस ले सकते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आंसर करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, वहाँ हम और भी डेप्थ में इन डिटेल ये सारे जो सेक्शंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कुछ कोर्सेज हैं, ओके, जैसे कि 2.0 बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है, तो हमारी जो JRF की जर्नी है उसमें सिर्फ पेपर 2 के साथ साथ हमारे पेपर 1 भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो पेपर 1 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका जो 2.0 बैच है इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वे में हमारी फैकल्टीज आपको सारी चीज़ें कवर करा रही हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है हमारी। और यहाँ पर अगर आप पेपर 2 में मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पर जो है, ओके, आई लेट यू नो अबाउट दिस थिंग, ओके, अभी इसके बारे में भी आते हैं। तो पेपर 2 अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल वे में कवर करा रही हूँ। बाकी हमारे ज्योग्राफी, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी हमारी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं आपको सारी चीज़ें नोट्स के साथ, क्लास PDFs के साथ, लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं बाद में रिविजन करने के लिए, और PYQs भी सॉल्व करवाते हैं क्लास में। और अगर आप पेपर 1+2 दोनों का बैच लेते हैं तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारे जो कोर्स है वो अवेलेबल है। सो डू अवेल द बेनिफिट एज सून एज पॉसिबल, ओके। ऑल्सो हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस हैं फॉर हिंदी एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। और पेपर 1 के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ये मिलते हैं। इसके साथ हमारे जो उत्कर्ष के 23 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अब, तो कल इसके उपलक्ष्य में, ओके, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आप सभी के लिए उत्कर्ष की तरफ से एक महत्वपूर्ण तोहफा है, सरप्राइजेस है। तो कल सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलिए। और इसी के साथ जो है आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन में आप किस तरीके से और बेहतर हो सकते हैं इससे रिलेटेड, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, ओके, कल सुबह 10 बजे, wherein we are going to talk about all the things which are going to be beneficial for your examination. So on that note, I'll take your leave. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead and stay tuned for more information like this.